Hello 12th class political science students. Welcome back to our channel. You all know that we have completed first part of the exercise for the chapter Era of One Party Dominance, and today we are going to do second part for the same. 5 questions we have already discussed in first video, and today we will discuss second part. So we will start from question number 6. Let us start now. Question 6 is asking from you, did the prevalence of a one party dominant system affect adversely the democratic nature of Indian politics? इट मीन्स आपसे पूछा गया है कि क्या जो वन पार्टी सिस्टम है, डोमिनेंस का सिस्टम है, उसने एडवर्सली अफेक्ट किया है हमारी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम का, मतलब इन अ बैड मैनर उसने अफेक्ट किया है? So, answer will be no. The prevalence of one party dominant system did not affect adversely to the democratic nature of Indian politics because the key role of Congress in the freedom struggle gave it a head start over others. है ना, हमने पढ़ा था because the Congress was having the legacy of freedom struggle, that's why it had given a start, right, to the Congress party, and it was able to cover all of the parties, right? Second is the Congress accommodated diversified interest, religion, belief and aspiration to the strengthened democracy. तो यही पूछा गया था ना कि क्या डेमोक्रेसी को एडवर्सली अफेक्ट किया? सो नो. Why no? Because Congress was able to accommodate diversified interest, religion, belief and aspiration also. So we can say that Congress, the era of one party dominance, was in the favor of democracy. It did not affect us in a negative manner, right? Third is the coalition like character of Congress gave it an unusual strength. हमने पढ़ा था ना कि कांग्रेस के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स थे, कहीं ना कहीं लग रहा था कि कांग्रेस को डिवाइड करेंगे, बट इट ऑल्सो वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ कांग्रेस पार्टी. Congress party consisted of various factions itself, inside itself, based on ideological consideration, who never taught together or went out of Congress. और इसका बेनिफिट क्या मिला कि कांग्रेस के अंदर ही डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज थी, राइट? और क्या हुआ, हु नेवर टॉट कांग्रेस, और ऐसे लोग, इट मींस कांग्रेस को उसका बेनिफिट क्या मिला, that it was able to make a coalition of those people, of those parties which were having different ideologies, but even then they were, that was providing a unusual strength to Congress, right? और इसने कहीं ना कहीं हमारी कंट्री को भी पॉजिटिव वे में इफेक्ट किया. वो कैसे इफेक्ट डाला? क्योंकि अगर आप देखोगे कि एक ही पार्टी है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, आपके अगर आइडियाज कांग्रेस से अलग भी हैं, then also you can represent your ideas, you can express your views. So this has worked for the strengthening of Indian democracy, right? Fifth is, since there was room within the party for various factions to fight with each other, it meant that leader representing different interests and ideologies remain within Congress rather than go out and form a new party. हमने पढ़ा भी था ना कि कांग्रेस ने क्या प्रोवाइड करवा दिया, a base for discussion, है ना? Suppose there were two people who were opposing each other, so the Congress provided them base also, but people were not getting separate from Congress, है ना? Initially they did not start to form any new political party. Got it? Fifth is the system of faction function as balancing mechanism within the ruling party. और faction system वही कि different ideas है तो उसने balance कर दिया, right? Political competition therefore took place within the Congress, इसलिए political competition increase हुआ. अब देखो ये सारी चीजें डेमोक्रेसी को कहीं ना स्ट्रांगनेस प्रोवाइड करवाती हैं. क्यों? क्योंकि अगर मान लिया कांग्रेस में सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी होती तो सेपरेट सेपरेट आइडियोलॉजीज को प्लेस ही नहीं मिल पाता. दूसरा, अगर कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी को इम्पोज करती तो कहीं ना कहीं दैट कुड बी अगेंस्ट द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज. बट यहाँ पे हम लोग क्या रीड कर रहे हैं, that there were different factions, and on the behalf of all those things people were able to get representation, they were able to question the policies of the government, right? So most of the states units
of the Congress were made up of numerous factions. The faction took different ideological position, making the Congress appear as a grand centrist party. और इसने कांग्रेस को क्या बना दिया, जो डिफरेंट डिफरेंट फैक्शन थे उसके अंदर आइडियोलॉजी के बेसिस पे, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कांग्रेस अपीयर्ड एज अ ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी, right? Hence, on the basis of the above mentioned criterion, it can be concluded that Congress strengthened ideals of democracy and held the unity and integrity of the country. As I told you, you will not say that just because of the ideas of Congress, just because of the ideological difference of the people, the Congress was getting weaker. Right? We have understood that it was able to give representation to each and every group. And that's why within the party also people could represent their views, their ideas in a independent manner. That's why it worked for the unity and integrity of the country. It did not create any kind of problem, and it did not affect the democracy of our country in any negative manner. Hope sixth question is completely clear to all of you. Seventh is bring out three differences each between socialist parties and the communist party and between भारतीय जनसंघ and स्वतंत्र पार्टी. आपको डिफरेंस बताना है. फर्स्ट है आपका सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी. तो देखो सोशलिस्ट, आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास ऑल्सो, इन द लास्ट एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास ओनली, कि सोशलिस्ट में क्या होता है. सोशलिस्ट में वर्क अकॉर्डिंग टू एबिलिटी एंड वेजेस अकॉर्डिंग टू वर्क. बट कम्युनिस्ट बेसिकली क्या होता है, जहां पे स्टेट का एक्सट्रीम कंट्रोल एस्टैब्लिश हो जाता है. सो सोशलिस्ट पार्टी, दिस पार्टी बिलीव्ड इन आइडियोलॉजी ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, यानी आपका सोशलिज्म कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए. और ये दिस पार्टी बिलीव्ड इन कम्युनिज्म. आई होप द कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? सेकंड, सोशलिस्ट पार्टी क्रिटिसाइज्ड कैपिटलिज्म एंड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्ट स्टेट. अब देखो कैपिटलिज्म क्या होता है. Capitalism means when state does not interfere in the well-being schemes or in the individual matter of any person. State will provide you just outer security. The boundaries will be protected by the state only. Right? That's why in the communist ideology, basically state is considered as the security state only. Got it? But यहाँ पे क्या होगा? Communist party was primarily secular, modern and also authoritarian. अब देखो क्या है, सेक्युलर, मॉडर्न होगी एंड अथॉरिटेरियन, क्या कि जिसका एक्सट्रीम कंट्रोल एस्टैब्लिश हो जाता है. गॉट इट? अब यहाँ पे क्या था कि कैपिटलिज्म को इन्होंने क्रिटिसाइज किया, मतलब दैट स्टेट शुड इंटरफेयर जस्ट टू प्रोवाइड सोशल जस्टिस, वेलबींग टू द सिटीजंस. बट यहाँ पे किसकी किसकी बात हो रही है, अथॉरिटेरियन, यानी स्टेट को एक्सट्रीम पावर्स प्रोवाइड करवाने की बात करती है कम्युनिस्ट पार्टी. Third is Socialist Party wanted more radical and egalitarian nature of Congress. इन्होंने क्या चाहा था कि रेडिकल होना चाहिए, मतलब बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज, और ऐसी जो इक्वालिटी पर बेस्ड हो. बट कम्युनिस्ट पार्टी ऑल्सो वांटेड द रेडिकल नेचर ऑफ कांग्रेस बट वेंट थ्रू वायलेंस टू अचीव इट्स एम्स. देखो सोशलिस्ट लोगों ने कभी भी वायलेंस के रिगार्डिंग कोई बात नहीं बोली. But those people who were favoring the communist ideology, they were in the favor of using violence also to achieve the aims. Got it? Hope socialist and communist parties are completely clear to all of you. Next is Bharatiya Jansangh and Swatantra Party. अब देखो भारतीय जनसंघ, it emphasized on the ideology of one country, one culture and one nation. इसमें हमने क्या बात अभी पढ़ा ना, कि अगर बीजेपी, अगर सॉरी भारतीय जनसंघ आपकी पार्टी को रूल करता, कंट्री को रूल करता, तो कैसा सिस्टम होता. तो वी स्टडीड दैट इस आइडियोलॉजी ने वर्क किया वन कंट्री, वन कल्चर और वन नेशन पे. बट स्वतंत्र पार्टी, इट एम्फेसाइज्ड ऑन द फ्री इकोनॉमी एंड लेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट. बट स्वतंत्र का मतलब क्या था, अभी अभी हम लोगों ने जब फर्स्ट पार्ट हमने किया था एक्सरसाइज का, वी हैव डिस्कस द क्वेश्चन ना, कि उसकी आइडियोलॉजी स्वतंत्र पार्टी की क्या थी. फ्री इकोनॉमी वी हैव डिस्कस्ड, मतलब स्टेट ज्यादा इंटरफेयर करे ही ना. गॉट इट? सेकंड इज दिस कॉल्ड फॉर अ यूनिटी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन अखंड भारत. इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि एक अखंड भारत बने, जो किससे मिलकर बने, बाय इंडिया एंड पाकिस्तान. And Swatantra Party, it was critical to the policy of non-alignment and favored to have closer relation.
अब देखो नॉन अलाइनमेंट, नॉन अलाइनमेंट क्या होता है कि किसी भी मिलिट्री अलायंस में इंडिया इंक्लूड नहीं होता था. द सेकेंड बुक दैट वी आर हैविंग ना, international politics basically, in which we will study. Okay, so all these theories we will discuss in detail in that particular book. So इन्होंने क्या बोला कि इंडिया की जो पॉलिसी है ना, इट वाज क्रिटिकल टू द पॉलिसी. ये उसको क्रिटिसाइज करते थे जो हमारी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है. मतलब हम किसी भी ग्रुप के साथ इंक्लूड नहीं होने वाले हैं. ना हम किसी बड़ी कंट्री यूएसए को फेवर करेंगे, ना हम किसी और सेकंड बड़ी कंट्री यूएसएसआर के ग्रुप को हम कहीं ना कहीं फेवर करेंगे. इन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया था उस पॉलिसी को. और इन्होंने क्या बोला, फेवर टू हैव क्लोजर रिलेशन, कि आप अच्छे रिलेशन बनाओ. क्यों आप क्रिटिसाइज कर रहे हो नॉन अलाइन, मतलब क्यों आप नॉन अलाइन हो रहे हो. थर्ड इज इट वाज अ कंसिस्टेंट एडवोकेट ऑफ इंडिया टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स. इन्होंने क्या बोला कि इंडिया को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने चाहिए. एंड वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर कि जब चाइना ने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लिए, उसके बाद तो भारतीय जनसंघ ने कहीं ना कहीं ये एक मैटर बना दिया था कंसर्न का, दैट इंडिया शुड ऑल्सो डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स. स्वतंत्र पार्टी, दिस पार्टी क्रिटिसाइज्ड सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, नेशनलिज्म एंड वन पब्लिक सेक्टर. इसने किस किस को क्रिटिसाइज किया? सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग. सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग मतलब जब सेंटर ही सारी की सारी चीजों को प्लान कर रहा है, यानी जब वन हैंड से पावर हर एक के पास जा रही है, जहां पर सुप्रीम पावर किसी एक पर्टिकुलर बॉडी के पास होगी. नेशनलिज्म एंड वन पब्लिक सेक्टर, इन सारी की सारी चीजों को क्रिटिसाइज करती है स्वतंत्र पार्टी. राइट. Eighth question is now, what would you consider as the main difference between Mexico and India under one party dominance? हमने चैप्टर में स्टडी किया था ना, that there is not only India in the world which is having era of one party dominance. There are a lot of countries in the world which are also favoring or which are also having the experience of one party dominance. But we have understood the difference. So now we are going to discuss the same thing. There was a difference between one party dominance in India and Mexico. And what is the difference? In Mexico, this was a one party system and only one dominance. What was the reason for one party dominance? अब देखो वहां पे क्या था, वहां पे एक पार्टी सिस्टम है. अब देखो हमारे यहाँ सिस्टम तो कैसा है, वी आर हैविंग मल्टी पार्टी सिस्टम. बट बिकॉज ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ द कांग्रेस वी वर एबल टू गेट वन पार्टी डोमिनेंस. और बट मैक्सिको का डिफरेंस क्या है कि वहां पे सिस्टम ही वन पार्टी सिस्टम है. Right? And that's why there is the dominance of one party only. But in India, what is happening? The Congress party dominated behalf of people consensus, but institutional revolutionary party ruled on behalf of perfect dictatorship. अब यहाँ पे कंपैरिजन हो गई. मतलब कांग्रेस ने अगर रूल किया, दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ द पार्टी. बट जहां आप मैक्सिको की पार्टी की बात करते हो, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी दैट वाज एबल टू रूल ऑन द बिहाफ ऑफ परफेक्ट डिक्टेटरशिप. मतलब वन पार्टी डोमिनेंस है. आई हैव गिवन यू एग्जांपल ऑफ चाइना आल्सो, कि जहां पे एक ही पार्टी का डोमिनेंस चलता है, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ओनली. गॉट इट. तो यहाँ पे एक ही पार्टी, दैट इज इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी. और इसका ये किसका एग्जांपल है? एक परफेक्ट डिक्टेटरशिप का एग्जांपल है. एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड मैक्सिको. Second, in India, free and fair elections took place where the laws of election was also fair. But in Mexico, elections were based on malpractices dominated by PRI. Right? अब देखो यानी कि आपकी revolutionary parties ही है. अब हमारी कंट्री में जो इलेक्शंस हुए, they were completely free and fair, we have discussed. And all the countries of the world, they have praised. Right? In which manner we have given universal adult franchise also, and we have successfully worked upon that. बट मैक्सिको में क्या हो रहा था? मैक्सिको में इलेक्शन बेस्ड थे मेल प्रैक्टिसेस पे, विच वर यूज्ड बाय पीआरआई, जो आपकी रेवोल्यूशनरी पार्टी थी. गॉट इट. नाउ वी आर ऑन द नाइन्थ. टेक अ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया विद द स्टेट एंड मार्क टू स्टेट्स वेयर कांग्रेस वाज इन नॉट इन द पावर एट सम पॉइंट्स ड्यूरिंग 1952 एंड 1967. हमने पढ़ा था ना केरला. इन पार्ट में आपकी कांग्रेस रूल में नहीं थी. सेकंड, द और एक कहां थी? मद्रास. दैट इज ऑल्सो त्रावणकोर कोचीन. दैट इज ऑल्सो इन त्रावणकोर कोचीन. द टू स्टेट्स वेयर कांग्रेस रिमेन्ड इन पावर थ्रू आउट द पीरियड. अब ऐसा पार्ट जिसमें इस कंप्लीट पीरियड में कांग्रेस रही है पावर में, वो आपके हैं पंजाब और यूपी, राजस्थान और वेस्ट बंगाल. ये वो प्लेस है जहां पर कांग्रेस पावर में रही थी. बट ये वाला कौन सा है जहां पर कांग्रेस पावर में नहीं रही?
Got it? You can fill it on the map of our country. So next is Patel, the organizational map of the Congress, wanted the purge the Congress of other political group and sought to make of it cohesive and disciplined political party. He sought to take the Congress away from its all-embracing character and turn it into a close-knit party of disciplined cadres. यानी पटेल के बारे में कुछ चीजें इसमें मेंशन है कि जो कांग्रेस आपकी कैसी होनी चाहिए, एक फुल्ली डिसिप्लिन पार्टी होनी चाहिए। कांग्रेस ऐसी होनी चाहिए जो सारे के सारे एम्ब्रेसिंग कैरेक्टर से अवे हो, यानी उसमें कोई ऐसे नेगेटिव चीजें हो ही ना। एंड टर्न इट इनटू अ क्लोज निट पार्टी ऑफ डिसिप्लिन कैडर, यानी कि जिसमें कंप्लीटली डिसिप्लिन हो। बीइंग अ रियलिस्ट, ही लुक्ड मोर फॉर डिसिप्लिन देन फॉर कंप्रीहेंशन। और क्या होना चाहिए, कंप्रीहेंशन की बजाय आपको डिसिप्लिन देखना। आपको ये नहीं देखना कि आपकी पार्टी कितने पार्ट पर एक्सपेंडेड हो रही है, बट यू विल हैव टू चेक द डिसिप्लिन ऑफ योर पार्टी, राइट? ये था पटेल का व्यू। बट वाइल गांधी टुक टू रोमांटिक अ व्यू ऑफ कैरिंग ऑन द मूवमेंट, अब गांधी का आइडिया जो कहीं ना कहीं वो क्या था, कैरिंग ऑन द मूवमेंट, जो मूवमेंट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड था। Patel idea of transforming the Congress into strictly political party with a single ideology and tight discipline showed an equal lack of understanding of the eclectic role that the Congress as a government was to be called upon to perform in a decades to follow. रजनी कोठारी, ये स्टेटमेंट्स आपकी रजनी कोठारी से गिवन है, जिसमें कंपैरिजन की गई है आइडियाज की गांधी, महात्मा गांधी के और सरदार वल्लभ भाई पटेल के आइडियाज की। तो यानी कि क्या हो रहा है कि पटेल के आइडिया में क्या है, कांग्रेस को कैसे ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, एक स्ट्रिक्ट पॉलिटिकल पार्टी के फॉर्म में, जिसकी सिर्फ सिंगल आइडियोलॉजी हो, टाइट डिसिप्लिन हो जिसमें, और एंड टाइट डिसिप्लिन शोड एन इक्वल लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इलेक्शन ऑफ द इक्लेक्टिक रोल दैट द कांग्रेस, वो सारी चीजें। अब उसके बाद एज अ कांग्रेस वाज टू बी कॉल्ड अपॉन टू परफॉर्म इन द डिकेड्स टू फॉलो रजनी कोठारी। और वो क्या चीजें, वो सारी की सारी चीजें जो कांग्रेस को परफॉर्म करनी थी डिकेड्स में, वो सारी की सारी चीजें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने आइडियाज में रिप्रेजेंट कर दी। सो अब देखो, why does the author think that Congress should not have been a cohesive and disciplined party? अब कहीं ना ये दिखाया गया कि जो पटेल के आइडियाज है उसमें पार्टी को ओवर डिसिप्लिन कर दिया। बट जो ऑथर है वो थिंक करते कि कांग्रेस पार्टी को ना इतना ज्यादा डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? So the author thinks that Congress should not have been a cohesive and disciplined party because the author wanted to take Congress away from all embracing character and turn it into the close-knit party of disciplined cadre. अभी आपने वल्लभ भाई पटेल के आइडियाज के बारे में स्टडी किया ना, कि कांग्रेस को सारे के सारे एम्ब्रेसिंग कैरेक्टर से अवे हो जाना चाहिए, और पार्टी कैसी होनी चाहिए, डिसिप्लिन कैडर, जो बिल्कुल क्लोज निट हो, किसके, डिसिप्लिन कैडर्स के। इसीलिए कहीं ना कहीं रजनी कोठारी ने, राइटर ने, ऑथर ने बोला है कि कांग्रेस शुड नॉट हैव बीन अ कोहेसिव एंड डिसिप्लिन पार्टी। सेकंड इज गिव सम एग्जांपल्स ऑफ द इलेक्टिव रोल ऑफ कांग्रेस पार्टी इन द अर्ली ईयर्स। अब examples of the elective role of Congress party in the early years are in the form of social and ideological coalition of the Congress. स्टार्टिंग के फेज में आप यही देखते हो ना कि कांग्रेस क्या थी, सोशल और आइडियोलॉजिकल कोएलिशन था, राइट? एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इट प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म फॉर न्यूमरस ग्रुप, इंटरेस्ट एंड इवन पॉलिटिकल पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द नेशनल मूवमेंट। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने सेम चीज डिस्कस किया कि इसने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा दिया डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को, सो दैट दे कैन पार्टिसिपेट इन द नेशनल मूवमेंट। अलोंग विद दैट कांग्रेस पार्टी रिप्रेजेंटेड अ रेनबो लाइक सोशल कोएलिशन रिप्रेजेंटेटिव है ना। इसके अलावा कांग्रेस ने क्या दिखाया, एक रेनबो की तरह सोशल कोएलिशन रिप्रेजेंट किया। द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग वेरियस कास्ट, रिलीजन एंड लैंग्वेज। अब क्यों रेनबो बोला गया, बिकॉज rainbow is made up of separate colors. In the same manner, Congress was given representation to various caste, religion and languages also. Right? इसीलिए जो एग्जाम्पल हैं कांग्रेस के रोल के, वो कैसे हैं कि हम बोल सकते हैं कि कांग्रेस क्या थी, इट वॉज अ फॉर्म ऑफ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोएलिशन ऑफ कांग्रेस, राइट? थर्ड इज व्हाई डज द ऑथर से गांधीज व्यू अबाउट कांग्रेस फ्यूचर वाज रोमांटिक, यानी गांधी के बारे में जो व्यू बोला गया है, द ऑथर इज कॉलिंग इट रोमांटिक।
So the author said that the Gandhi's view about Congress future was romantic because Gandhiji believed in hand-in-hand characteristics of a national movement led by Congress, यानी hand in hand ऐसा movement होना चाहिए, which attract various section group and society to form a social and ideological coalition in Congress. जहां आपने देखा पटेल के व्यू में क्या था, कॉम्प्रीहेंशन की बजाय आपको डिसिप्लिन पर ज्यादा फोकस होना है. But according to Mahatma Gandhi, what should be the basic idea of the Congress party? That just because it was going to represent the national movement, that's why we should walk hand in hand. And what will be the impact of that thing? That because of that ideology, Congress will be able to attract various section group of the society and from the different ideological background also, right? And that's why this statement is related to Mahatma Gandhi, or you can say polite way of Mahatma Gandhi to deal with the different social groups, right? So we can consider or we can compare the ideas of both of the leaders also. While Mahatma Gandhi was in complete favor of the representation of different social cultural groups in the Congress, and on the other hand, Sardar Vallabhbhai Patel was favoring a strict discipline in the Congress party. Hope all the questions of the chapter are clear to all of you, and hope the chapter era of one party dominance is also completely clear to you. But if you are having any kind of doubt, you can ask your question in comment section. From next video, we will start our next chapter. Till then, keep learning, keep revising. Thank you. Thanks a lot.